आप देख रहे हैं द राइट न्यूज। मैं हूं भारती कौर। आज हमारे स्टूडियो में एक वेल नोन डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर नीरू खरू। शी इज अ डेंटल सर्जन, स्पेशलिस्ट इन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री एंड डिग्री इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। डॉक्टर नीरू खरू, आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू भारती जी, नमस्कार। Nice to be with you all here. Yeah. Doctor, you have worked outside state also. Yeah, I have worked outside state also. Where As a all? lecturer. Where all? I had worked in Kotiwal Dental College as a lecturer. I was there. Yeah. And then I started my practice in Jammu initially at Residency Road. Then I went outside for a period of around 2 years. Mm-hmm. And in 2006, I came back to Jammu. Oh, what was the experience like outside and in Jammu? When you have to work, you have to work. I Yeah. don't feel there's any difference. You have to work with dedication, that matters. Right. Yes, that is what it matters. You are very right. And from 2006 onwards, you have been working in BN Yes. as I have a degree in hospital administration, so Yeah. I was appointed as a deputy medical superintendent over there. So I had been associated with BN के साथ मैं associated 2006 ending से हूँ हम्म। और अभी तक भी वहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ वहाँ पे। मैंने आपको जब भी वहाँ पे देखा हुआ है, बहुत बिजी होते हैं आप, एकदम शेड्यूल टाइट आपका होता है। हाँ, ये बात सही है, बिकॉज बहुत सारा काम होता है। बिकॉज वहाँ पे हम पेशेंट्स के साथ डील करते हैं एंड हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है स्पेयर कि हम कुछ और सोच सके या कोई और काम कर सके, बिकॉज वी आर वेरी मच फोकस्ड कि वी हैव टू गिव सर्विसेज। राइट। उसमें हमें अपने नॉर्म्स भी, प्रोटोकॉल्स भी और ट्रीटमेंट भी प्रॉपरली देना है पेशेंट को। वी हैव टू सर्व टू द बेस्ट। Right. Exactly. That is what a doctor is for. Thank you. And always there with a smile. I have seen you with a smile on your face all the time. Yeah, I think whenever a patient smiles, it gives me a sense of satisfaction. Right. And when the doctor smiles, the patient is getting, that satisfaction of being in very good hands. Yeah, that's also true. So, doctor, I would like to ask you, you have worked also in the army. Yeah, it was a privilege working with army veterans Okay. and treating them as a dental surgeon. मैंने 2009 में ECHS जम्मू सतवारी ज्वाइन किया and till 2018 I was there and it was a great experience to work with veterans. इतना ज़्यादा, इतने अच्छे disciplined, they were so welcoming and full of warmth. They gave you so much of respect. आपको पता चलता है आर्मी एंड सिविलियन लाइफ में डिफरेंस कितना है। एंड मतलब इट हैज बीन रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड मीटिंग ऑल दोज वेटरन्स जिन्होंने इस देश के लिए सेवा की है एंड दे हैव सर्व्ड द नेशन टू द कोर एंड अपनी फैमिलीज को छोड़ के उन्होंने इस कंट्री के लिए सर्विस दी है एंड द वे दे ट्रीटेड मी and still I'm in touch with all of them. It gives me immense pleasure. So you have been really lucky to work with them. Yeah, I have been lucky and honored, you can say, Really, yes, to serve them. It really gives you a satisfaction. And doctor, let us start with the dentistry. Like dental problems. From when does it start? And the oral health of the child, when do you take care of? See, once I have seen nowadays, I'm seeing the kids at the age of 3, 4 years of age, they're having problems. Multiple cavities and all, maybe because of improper oral hygiene, and parents should also take care. उनको भी ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों के दांत कैसे ठीक रखें, लेकिन रात को सोने से पहले खाने को ऐसी कोई चीज ना दे जो हमारे मुंह में रहे, स्टिक करे। जैसे चिप्स हुआ या मिल्क अगर देते हैं तो ब्रश कराए, ब्रश नहीं एटलीस्ट रिंसिंग तो करा ले खाने के बाद जी। और फूड हैबिट्स, आजकल बच्चे जंक फूड लेते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं। तो आई कम अक्रॉस नाउअडेज में बहुत छोटे छोटे बच्चों को देख रही हूँ, ऑल्दो मुझे भी फील होता है कि छोटी एज में, बिकॉज मतलब पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो दूध का दांत है ना, तो मैं कहती हूँ दूध का दांत एज इम्पोर्टेंट एज परमानेंट टूथ। क्यों? क्योंकि अगर दूध का दांत अपनी एज तक, बिकॉज हर एक दांत की अपनी एक उम्र होती है निकलने की, अगर उससे पहले निकला तो आपके परमानेंट दांत के लिए जगह कम बचेगी। बिल्कुल। तो वो चीजें बहुत ध्यान में रखनी होती है। सो बच्चों का ध्यान ज्यादा रखना है, बिकॉज बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। बच्चे तो इनोसेंट है, बच्चों को क्या पता नहीं है। हाँ। और छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं ब्रेसेस लगी हुई, ब्रेसेस लगे। हाँ, तो उसके लिए जो कि है कितनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है बच्चों को भी।
नहीं, आई कांट से मुश्किल से गुजरना पड़ता है बिकॉज इट्स अ टेंडेंसी। जैसे ब्रेसेस हाँ। लगने हैं, अगर किसी का इरेगुलर डेंटिशन है, हाँ। आगे पीछे है, पर्सन हैज टू वेयर द ब्रेसेस। Okay. ओनली थिंग इज दैट ये कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आजकल एस्थेटिकली बहुत लोग कॉन्शियस हो चुके हैं, दे वांट प्रॉपर अलाइन टीथ। इसमें कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बट कराना चाहिए बिल्कुल, बिकॉज डॉक्टर, इसमें हाँ, इसमें हमारा बहुत सारा, अगर आपका इरेगुलर हुआ, कभी कभी आपका टीएमजे डिसफंक्शन हो जाता है बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटी, बिकॉज ऑफ फिर कभी ये होता है कि जैसे हमारा आर्मी एग्जामिनेशन होता है, आर्मी में कहते हैं बड़े लोग भर्ती होने के लिए वी हैव टू सी द डेंटिशियन, चेक द डेंटिशियन, बिकॉज वहाँ पे भी एक प्रोटोकॉल्स होते हैं। आर्मी या पुलिस में जाना हो तो वो प्रॉपर होना चाहिए, उसके पॉइंट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, ये तो है, यू हैव टू पास ऑल द वे टू, Yes. एवरीवेयर यू हैव टू पास, Fast testing. अनलेस यू वोंट बी टेकन। Yes. अब ये बात है कि जैसे अब बच्चे का आपने बता दिया कि आपको केयर करना है, बच्चा खुद नहीं करता है, Yes. पेरेंट्स को करना है, या माँ करेगी या Father उसके करेंगे। फादर करेंगे, कोई भी करेगा, पर उन्हें करना जरूरी बहुत है, इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी और है। टाइमली चेकअप भी कराना है। हाँ। मैंने ये देखा है कि बच्चे को पहले ही डराया जाता है डेंटिस्ट के पास, डराना नहीं है। डेंटिस्ट हैज टू बी लाइक ए फ्रेंड टू छोटे बच्चे के लिए, हाँ, बिल्कुल। एंड वो जब होगा, मैंने बड़ा देखा है ओवर अ पीरियड ऑफ इट्स बीन मोर देन 15 years आई हैव बीन इन प्रैक्टिस। तो जो बच्चे छोटे से बड़े हुए, आई हैव ऑलवेज ट्राई टू बी अ फ्रेंड टू देम बिकॉज़ आई डोंट वांट टू। मैंने देखा है, मैंने अपनी फैमिली में देखा है कि बच्चा एक बार डेंटिस्ट के पास गया तो वो एक नाइटमेयर सा बन जाता है। आई नेवर वांटेड दैट फॉर माय पेशेंट, जो मेरे पास बच्चे आते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ फ्रेंड टू देम इनिशियली, मे बी बाद में मैं टफ भी हूं at a particular point of time, but at least जब वो मेरे पास आता है, I have to be a friend, और उसके दिमाग में वो एक साइकोसिस नहीं डालना है कि डेंटिस्ट इज अ फियरफुल थिंग और नाइटमेयर। राइट, बट ऐसे हमेशा होता है, इवन बड़ों के साथ भी होता Yes, है। true, वो true. जब मुंह खोलना पड़ता है डेंटिस्ट के सामने और फिर वो लाइट आपके ऊपर पड़ती है तो आप लोगों को पहले अब डर लगता है। हाँ, बहुत सारे बहुत patient डर बड़े भी होते हैं। True, I agree with you. I know, डर तो लगता है, लेकिन एक चीज ये है कि आपने केयर ले लिया, आपके बचपन में आपके पेरेंट्स ने केयर ले लिया, फिर बच्चा कब से अपना केयर खुद लेना शुरू? कि 9 years के बाद आप उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, बट पेरेंट्स हैव स्टिल टू बी पर्टिकुलर कि उनको चेक करते रहना है कि क्या बच्चा वो फॉलो कर रहा है जो उसको सिखाया गया, और टाइमली चेकअप के लिए लाना है। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। बाकी डेंटिस्ट की भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना। जो भी जिसका डेंटिस्ट है उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वल बनती है अपने पेशेंट को इतना मोटिवेट करना कि वो आए, टाइमली चेकअप करवाए, ताकि हम टाइमली इंटरवेंशन कर सके। बिल्कुल, प्रोलॉन्ग जो ट्रीटमेंट ना हो, उससे बच जाएगा अगर टाइमली इंटरवेंशन हुआ और रूटीन चेकअप्स होते हैं। केरीज वगैरह कब से स्टार्ट होंगे? केरीज तो किसी भी, हम तो बच्चों में केरीज देख रहे हैं, वही मैं कह रही हूँ, आजकल 3 साल के बच्चे में देख रही हूँ, 4 साल के बच्चे में देख रही हूँ, एंड मतलब आज क्या काफी देर से केरीज तो नर्सिंग बॉटल सिंड्रोम, जैसे बच्चे को पहले मदर्स मुंह में बॉटल रख के रख देती थी, एंड फिर देन रात भर रखी ताकि बच्चा सोया, हमने नर्सिंग बॉटल केरीज होती है बच्चों में। तो ये तो पहले से मतलब स्टार्टिंग से हो सकती है, इट इज नॉट लाइक कि बड़ों को होगी छोटों को नहीं होगी, छोटों को भी केरीज होती है। अच्छा, तो आपको बच्चा हैंडल करने में मुश्किल तो नहीं आती? नहीं, जनरली नहीं। आई एम लकी दैट वे कि मेरे पास 98% बच्चे बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, एंड बिकॉज पहली मैं पेरेंट्स को पहले ही बताती हूँ, डोंट फोर्स मी फॉर द ट्रीटमेंट, लेट मी बी अ फ्रेंड टू माय बेबी। Maybe, अच्छा, Yes. okay, that's really very nice. दैट वो तो है ही ना, वे ऑफ भगवान तो, डॉक्टर तो भगवान ही का एक भगवान का रूप है, भगवान के हाथ वहाँ पे लगते हैं, उसमें शफा। वो तो मैं मानती, बट ये है कि मेरे लिए वो बच्चा बहुत ही प्रेशियस है देन द बड़ा। हाँ। क्योंकि वो बच्चे को मैं वो बच्चा जो है उस टाइम पे उसके दिमाग में मैं कोई भी डर नहीं रखना चाहती हमेशा के लिए डेंटिस्ट के कि ही इज अ डेंटिस्ट, शी इज अ डेंटिस्ट, नहीं मुझे जाना ही नहीं है। आई वांट टू बी अ फ्रेंड टू हिम, सो मैं उसको बहुत टेंडरली प्रेफर करती हूँ इनिशियली। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, अब बताइए मुझे आपकी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, जैसे एडल्ट्स में? एडल्ट्स में मोस्टली आप क्या देखते हो, क्या प्रॉब्लम्स आती है ठीक ठीक? देखिए, एक तो गम ब्लीडिंग्स होती है, कैल्कुलस होता है, कैविटीज होती है, दीज आर द मेजर थिंग जो मैं एडल्ट्स में देखती हूँ। बाकी जो आपने कहा कि मिसिंग टीथ देखती हूँ कि लोग टाइमली केयर नहीं करते, टाइमली इंटरवेंशन नहीं करते, टाइमली चेकअप के लिए नहीं आते हैं या निकलवा देते हैं। नाउ इट इज आई डोंट थिंक एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना
हम उसको ट्रीटमेंट नहीं मानते अनलेस एंड अनटिल इट इज मैंडेटरी। Okay. या कोई हाँ हम निकालते, जैसे ब्रेसेस के लिए हमें कभी कभी कुछ टीथ निकालने पड़ते हैं, सो एज टू अलाइन देम प्रॉपर्ली, हमें स्पेस चाहिए होती है। Mhm. बट अदरवाइज कैविटी के कारण, आप कैविटी है आपकी और आप ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हो अनलेस कि उसके बाद लास्ट स्टेज पे आप डेंटिस्ट के पास आओगे, वो हेल्पलेस हो जाता है। Mhm. इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज टू रिमूव द Remove the tooth, एंड yes. दैट शुड नॉट बी द केस। राइट कि अपना आपका ओरिजिनल टूथ आपके मुंह में दैट रहे इज तो दैट मोस्ट इज इम्पोर्टेंट थिंग, yeah. बिकॉज आपका खाना, आपकी फेशियल मसल्स, आपकी स्माइल से लेके मेन आपकी हेल्थ, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर टीथ। What about the food habits? If the food habits are not right, Yeah. they are not right food habits, so it affects the teeth. Definitely it affects the teeth. Mm-hmm. When our food habits are not right, like I told you, पहले भी मैंने आपको बोला, आजकल लोग जंक फूड पे ज्यादा जा Right, रहे हैं एंड मेंटेन नहीं कर रहे ओरल हाइजीन को। These all things affect। हम कहते हैं हमेशा फ्रूट्स खाओ, so that because जब हम डिटर्जेंट फ्रूट लाइक एप्पल होता है हम खाते हैं, बहुत सारे हमारे टीथ जो होते हैं क्लीन हो जाते हैं। Mhm. और इंस्टेड हम चिप्स खाएंगे हो गए कि दैट स्टिक्स The mouth of- हाँ, हाँ। और धीरे धीरे कैविटीज बनना शुरू हो जाती है। हाँ। और डॉक्टर एक चीज ये तो हो गई हमारे इसकी बात कि हमारी कैविटीज बन जाती है, फूड हैबिट्स ठीक नहीं हो। अब बात आती है कि अब आपके पास एक पेशेंट आया है जिसके दांत बहुत खराब है, तो आप उसके साथ क्या करोगे? ये डिपेंड करता है कि क्या है। जैसे अगर मैं बचा सकती हूँ तो आई प्रेफर टू डू द रूट कैनालिंग एंड उसके बाद कैपिंग अगर रिक्वायर्ड होगी तो करूँगी। अगर मुझे लगेगा इट कैन विथस्टैंड विदाउट कैप ऑल्सो तो वैसे भी कर सकते हैं। बट अगर निकालने वाला स्टेज है तब निकाल के फिर फिक्स देना है, या जो पेशेंट एफर्ट कर सकता है। मतलब आई कांट से कि मैं हर किसी को इम्प्लांट दूँ या हर किसी को फिक्स दूँ। आई सी द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू टेल पेशेंट, चाहे वो कोई भी आए, आई हैव टू टेल देम एवरीथिंग कि ये ट्रीटमेंट है। बट देन इट डिपेंड्स अपॉन द अफोर्डेबिलिटी ऑफ द पेशेंट आल्सो। आई कांट फोर्स एनीबॉडी टू तुम इम्प्लांट ही लगाओ। लेकिन असल में सबसे अच्छी चीज क्या रहती है? देखिए ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। फॉर एग्जांपल मतलब मुझे उसकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखनी है, मुझे उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी देखना है। सो आई डिसाइड एज पर ऑल दोस थिंग्स। आई सी द मतलब सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के ही मैं पेशेंट को एडवाइस करती हूँ। मान लीजिए मैं आपके पास पेशेंट हूँ और मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी टीथ नहीं है, तो उस टीथ में मेरा पीछे भी ब्रिज के लिए कुछ लगाने के लिए नहीं है, उसमें क्या करेंगे? तो फिर हम इम्प्लांट लगा सकते हैं। इम्प्लांट कहाँ पे? इम्प्लांट जहाँ पे आपकी बोन है, जहाँ पे हमारा गम होता है, वहाँ पे स्पून में डाला जाता है इम्प्लांट। Okay. और फिर हम वेट करते हैं 3 मंथ्स के लिए मिनिमम, ताकि बोन के साथ ऑस्टियोइंटीग्रेशन हो। आफ्टर 3 मंथ्स इट विल चॉप ओवर देयर। Okay. So these are the measures that you take. But looking at the condition of the patient, status of the patient, Definitely. accordingly you give the treatment. आई एडवाइस एवरीथिंग कि ये ट्रीटमेंट हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट आल्सो। Right. You should not do what you feel. We have to feel what patient thinks he can afford or he can do. We have to tell him each and every part of treatment कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चाहे कोई भी हो। फिर हमें पेशेंट पे छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आप मुझे ये बताइए, आप जैसे आपके पास पेशेंट आ गए, अब उनको आप दवाइयाँ भी देते हो, एंटीबायोटिक्स भी देते हो? I avoid. See, generally speaking, you do have to give Not antibiotics. necessarily. I don't believe in much of medicine. Okay. Being dental is a profession जहाँ पे हम mostly अपने treatment से भी patient को ठीक करते हैं and बहुत मतलब I myself don't like to take medicine, much of medicine. Okay. So मैं चाहती हूँ कि मेरा patient जितनी कम से कम medicine से, हाँ जहाँ पे requirement है वहाँ पे सेप्टिक नहीं है, सेप्टिक होगा तो इन्फेक्शन होगा तब दे सकते हैं, लेकिन बहुत बार जैसे रूट कैनाल या कुछ है तो मैं नहीं देती। आई डोंट गिव मेडिसिन। बट एनेस्थीसिया यू विल गिव फॉर रूट कैनालिंग नॉट नेसेसरी। या यू हैव टू गिव Not necessary. नहीं होगा। नहीं, सबके लिए नहीं होता। आई डोंट गिव ऑल। ओके, दैट इज वेरी नाइस। Yeah, more than 90% केस cases I मैं तो have- आपके पास ही आऊंगी, मुझे सुई से बड़ा डर लगता है। आई डोंट प्रेफर, मतलब मैं ये नहीं चाहती बिकॉज आई वांट टू सी माय पेशेंट्स रिस्पॉन्स इमीडिएटली एंड इंस्टेंटली। लाइक अगर बाहर की कंट्रीज में मैंने देखा इवन अगर फिलिंग भी करना हो दे डू गिव एनेस्थीसिया ये पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए। बट मेरा एक अपना तरीका है, व्हेन रिक्वायर्ड आई डू गिव फॉर आरसीपी, बट ये जब निकालना है तब तो देना ही देना है। बिल्कुल। बट इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड आई डोंट गिव। आई डोंट वांट पुट द पेशेंट के 2.5 घंटे में मेरा ये रहे कि एनेस्थेटाइज रहे, नम्बनेस रहे उसको। इफ इट कैन बी डन विदाउट ये गिविंग एनेस्थीसिया वी हैव। Okay, that's very nice. And what would you like to tell our viewers about the dental care
and how they should maintain? This will be my last question to you. Like देखिए, there are so many health related problems. डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, जिनका गैस्ट्राइटिस होता है, वो होता है, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है डेंटल की. एंड बट एज पर द मेडिकल रिक्वायरमेंट दे नीड टू विजिट देयर डेंटिस्ट. और उसके बाद उनको मतलब ये तो सबके लिए है कि रूटीनली चेकअप कराना ही कराना चाहिए, बट इन पेशेंट्स को ज़्यादा ध्यान रखना है. बिकॉज वेन वी हैव टू मतलब अगर कभी हमें उनका एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, वी हैव टू उनके सारे पैरामीटर्स हमारे पास नॉर्मल होने चाहिए. वी जस्ट कांट गो ब्लाइंडली और हम ट्रीटमेंट करें या ऐसा कुछ करें. तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेशेंट का ऑरल हाइजीन मेंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका ब्रीडिंग गम्स होता है, टाइमली चाहिए. इट कैन बी ट्रीटेड विदाउट मेडिकेशन, बट you need to go to the dentist. Yes. ठीक है. And make that effort. Yeah, you have to make that effort. Dentist is not going to come to you. You have to go to the dentist. And second, जो भी आपका जहाँ पे भी आपका फेथ है, आपको वहाँ जाना चाहिए. अपना जिसका जो होता है डेंटिस्ट, उसके पास जाना चाहिए और वहाँ पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए. अपनी प्रॉब्लम बतानी चाहिए. टाइमली रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए. मैं तो कहती हूँ कि मेरे बाहर के पेशेंट्स जो आते हैं, बाहर से आते हैं, they come routinely. जब भी वो यहाँ आते हैं, जम्मू आते हैं, they do come for their checkup and all, and I appreciate that. तो यही मैं चाहती हूँ, रूटीनली चेकअप, ताकि उससे क्या होता है, अगर ये टाइमली इंटरवेंशन हो. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है, अगर हम डिले करेंगे अपने ट्रीटमेंट को, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हमेशा बढ़ता है. वो सिटिंग्स जो बढ़ती है वो तो है ही है, बट कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ता है. सो इट इज़ बेटर, टाइमली इंटरवेंशन इज बेटर एंड टाइमली चेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे पेशेंट्स तो आई फील कि मेरे पेशेंट्स टाइमली आते भी हैं, चेकअप भी करवाते हैं, एंड रेयरली कोई होता है जो अपने आप को नेग्लेक्ट करता है. बिकॉज वंस दे कम, दे नो दैट वी हैव टू कम अगेन. Okay, that's very nice. Thank you very much, Dr. Thank you, Neeru. Bharti, And it has really been an enlightening session for us and for the viewers also. तो आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने आपको इतनी अच्छी सारी बातें बताई हैं. आपको इनका फॉलोअप उन्होंने बताया है कि फॉलोअप लेना बहुत 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 ज़रूरी है. तो ये आप टाइम टू टाइम ले लिया करिए और अपने दांतों को बचाइए. डॉक्टर नीरू, आपका क्लिनिक यहाँ बोड़ी में है, और अगर ज़रूरत पड़े आप इनसे आके मिलिए. और इतनी स्माइलिंग अच्छी डॉक्टर हैं, वेरी वेरी पॉजिटिव, विद पॉजिटिव वाइब्स. थैंक यू वेरी मच. Thanks a lot, Bharti. It's always a pleasure being with you.